सर इसको थोड़ा लास्ट में करना, चेक करना था कि वही है दूसरी है प्रेजेंटेशन। ये नई वाली है जो आपने भेजी है? ये सर वो टाइम गालिब को मैंने मैनेजमेंट की बोला था भेजी थी? आपने टाइम मैनेजमेंट की भेजी है ना मुझे अभी कल? पुरानी वाली भी मेरे पास पड़ी हुई है, आप कौन सी करनी है आपने मुझे बताइए। सर ये करनी है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो फिर यही लगाई है मैंने, जो मुझे उसका मैसेज आया था आपके सीआर का, उसने यही कहा था। चौथा पार्टनर आया आपका, नहीं आया नोमान? सर अभी तक तो नहीं है। क्या हो गया है भाई तुम लोगों को? जुवेरिया बेटा, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल तैयारी ठीक। कैसी है आपके फाइनल की, ये बताइए। बस चल रही है सर अभी तो। अच्छा, तो ये आपके पेपर ऑनलाइन होंगे फिजिकल होंगे? सर अभी तक तो ऑनलाइन के ही मैंने सुना है, फिजिकल का तो नहीं है। अच्छा, मैं सुन रहा था कुछ वो बिजनेस स्कूल वालों ने ये किया है कि ऑनलाइन होंगे, बट यू हैव टू कम इनटू सिटी कैंपस, जो जहाँ पे उनकी क्लासेस होती हैं, वहाँ कंप्यूटर लैब में और लाइब्रेरी में बैठ के वो पेपर देंगे। दिस इज व्हाट आई हर्ड यस्टरडे। वहां पर सर ग्रुप मेंबर आ चुके हैं पूरे। आ गए? चलें जी, बिस्मिल्लाह यस करें, कौन शुरू करेगा? सर, मैं करूंगा। चलें, बिस्मिल्लाह। I start with the great name of Allah, who is most merciful and beneficent. I came with my group members, Noman, Wasim Sajad, and Sayyiduka Shagazi. Today's our presentation topic is time management. Next slide, sir. Here is some contents which we'll cover in our presentation. Introduction, benefits of time management technique, time management skills, time management in corporate, role of managers, including time management skills in employees, practicing time management of workplace, time management tips, ideal task plan. This content will be covered by my group members and with me. Next, sir. Introduction. It is rightly said, time and tide wait for none. There is some favorite quote of mine. Jim Rohn said, time is more valuable than money. You can get more money, but you can't get more time. It's also another quote. Remember that time is money. This quote is given by Ben Blinken. An individual should understand the value of time for him to succeed in all aspects of life. People who waste time are one who fail to create an identity of their own. Nowadays, some of the people who waste their times by using smartphones, by calling to their friends, gossiping, and using the social network as well. Next slide, sir. What's time management? Managing right time for right activity. Managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity. Making the best use of time is always limited. You exercise time management to increase the productivity, effectiveness, and efficiency. The practice skills and use tools and techniques to aid you when accomplishing tasks, projects, are working towards goals and deadlines. Why do we need time management? Because of we have to save our time, reduce stress, increase our work output. The more control our job responsibility, where time management creates stress. Next slide, sir. Time management includes effective planning. What's effective planning? Plan your day well in advance. Prepare to do a list or a task plan. Order activities according to their priority. Allocate the suitable time to each activity. Complete the pending tasks one by one. Do not begin fresh work unless you have finished the previous task. Take that once you have already completed. Ensure you finish tasks within the time frame. Setting goals and objectives. Working without goals and targets in an organization would be similar to a situation where the captain of the ship loses his way in the sea.
nowadays I have watching TV, and I have watched that there is a Brahmanda triangle in which the seas and ships are going to flood. This is the right example of for setting goals and objective, because the captain of the ship have no any target. Set the targets yourself and make sure they are realistic and achievable. It means we have to set targets which is easy and reliable for us. Lot of people, they haven't choose uh, choose difficult targets, but they cannot success, but they're trying again and again. 3. Settings deadlines. Ask yourself how much time needs to be devoted to a particular task. Set deadlines for every task and be committed to. Do not wait for your superior to ask you every time. Learn to be self-driven. Number 4, delegation of responsibility. Do not do everything on your own. There are other people as well. Roles and responsibilities should be delegated to employees according to their interest and specialization to ensure they would finish within deadlines. An employee who doesn't have enough knowledge needs to more time than more someone who knows the work well. Number 5, priority activities and importance. Prioritize task is for the importance and urgency. Know the difference between important and urgent work. If we have urgent work, then manage crisis and deadlines. This is the important. If not urgent, we have to focus our planning, prevention, exercise, relationship, and buildings. If we identify which tasks should be done along the day and during the month. Number 6, spending right time on right activity. Develop the habit of doing the right thing at the right time. Work done at the wrong time is not of much use. Keep some time separate for your personal calls and checking updates on Facebook or Twitter. After all, human being is not a machine. Next slide, sir. Characters of good time manager. Number 1, organized. Avoid keeping stacks of file and heaps of paper at your station. Throw what all you want, what all you do not need. Put important documents in folder. Keep the files in their respective drawers with labels on top of each file. It saves time, which goes on unnecessary searching. Number 2, do not misuse of time. Concentrate and finish assignment on time. Do not wait till the last moment. Nowadays, online semester is going on, but some students waste their time on using mobiles by gossiping students, friends, but they do not submit their assignments on time online on LMS. But in the few last 5 minutes or 10 minutes remaining there, they ask for the assignments, but they've after all, they may say to teacher that I have some internet issue, LMS is not working. Then can we send you through email? Do not kill time by loitering and gossiping around you. Remember, your organization is not paying for you playing games on computer or peeping into other cubicles. First, complete your work and then do whatever you feel like doing. Number 3, be focused. Develop the habit of using planners, organizers, tables, calendars for better timing management. Set reminders on phones or your personal computers. If I am wake up early in the morning at 6 a.m., then I have to keep alarm in my smartphone. Next slide, sir. Benefits of time management. Time management refers to making the best possible use of available time. Managing time well enables an individual to do the right thing at the right time. Time management play an important role in the personal as well as professional life.
Let us go through some benefit of the time management. Next slide, sir. Makes you punctual and disciplined. To make the use of time, prepare a task plan or to do list at start of the day, then sort activities which need to be done in particular day as per their importance and urgency. Allocate a specific time to each activity. Number 2, makes you more organized. Keeping things at their proper places minimize time waste on unnecessary search for documents, files, folders, stationery items. Keep your workstation, study zones, cubicles, meeting areas clean and organized. Boost your moral and confidence. Accomplishing tasks within the stipulated time frame makes you popular in the organization as well as amongst your peers. It means I have to say I can do it. People who understand the value of time are the ones who manage to stand apart from a crowd. Individuals who finish the work on time are looked up to by the others, and they are always center of the attention everywhere. Reduces time reach goal and objective. Manage time effectively, help employees to meet targets way ahead of deadlines. Effective time management play a pivotal role in increasing individual productivity. Effective time management helps employees to reach a pinnacle of success quickly and stay firm at the top of the longer duration. An employee who works just for the sake of working fails to create an impression and is never taken seriously at work. Number 5, makes you plan better. You have to learn how to plan things well and know where exactly they stand 5 years from now. Number 6, reduce stress and anxiety. Remember, there is no point investing time and cribbing later. Finish off pending work on time, and then you would have a lot of time for your friends, relatives, and family members. 7, better prioritizing of tasks and activities. It is foolish to say or burn, do not accept anything and everything that comes your way. Now I would like to call Wasim Sajjad to present from here, their presentation. Thank you. Wasim Sajjad. जी वसीम, बिस्मिल्लाह. Now I continue this presentation. Time management techniques. Set your priorities. Finish your assignment on time. Difference between urgent and important. Stay focused in life to work. Don't overload yourself. Be disciplined and punctual. Be organized. Set a realistic target. Enjoy your work. टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हम जिंदगी में रोजमर्रा यूज करते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हुए अगर चलेंगे तो हमें कामयाबी हासिल होगी. गुड. नेक्स्ट स्लाइड. आपने 10 पॉइंट में एक पे बात की है, बाकी ये जरा एक्सप्लेन तो करें ना कि एड लाइफ टू वर्क कैसे करती टाइम मैनेजमेंट. जी सर. बताएं ना, मुझे जरा एक्सप्लेन करें कि एड लाइफ टू वर्क टाइम मैनेजमेंट से. जी सर. ये तो देखें, जो पहले वो एक्सप्लेन करके गए हैं, सुनील ने जो एक्सप्लेन किया है इस स्लाइड के ऊपर, आपको यू आर सपोज टू एक्सप्लेन दिस स्लाइड टू ऑल ऑफ अस. अब चले मैं आपसे सवाल करता हूँ, हाउ वुड यू एंजॉय योर वर्क? टाइम मैनेजमेंट में किस तरह आप अपने वर्क को एंजॉय करेंगे? सर हम टाइम पे अगर काम नहीं करेंगे तो हमें टेंशन होगी और बर्डन बढ़ जाएगा और सर फिर किसी भी चीज़ का सर वो मज़ा नहीं आएगा सर. इसलिए सर हम टाइम पे अगर काम करेंगे और फिर सर जो सर काम होगा वो सर वो भी इजी रहेगा और जो टेंशन होगी वो भी रिलीज हो जाएगी हमारी. ओके. तो इसलिए सर एंजॉय योर वर्क. चलिए. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स.
stay organized. Number 2, learn to priorities. Number 3, be punctual and disciplined. Number 4, take our ownership of work. Number 5, be a little diplomatic. Number 6, more focused. Number 7, be reasonable. Next slide, sir. Now I call Okasha. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट लाइफ। अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं, इंशाल्लाह हमारा सबको यूनिवर्सिटी के बाद कॉर्पोरेट लाइफ में जाने का इरादा है, तो वहाँ पर जो है वो अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट है वर्क ऑन डेडलाइंस। अब वहाँ पर जो है वो काम हमें मिल रहे होते हैं, जो भी टास्क हमें मिल रहे होते हैं, उनकी डेडलाइन ऑफिस की तरफ से या किसी भी मैनेजर की तरफ से मिल रही होती है। तो हम टाइम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपना, कि अपनी जो भी टास्क है उसकी हम एक डेडलाइन सेट करें अपने दिमाग में, और वो उस डेडलाइन एक्चुअल डेडलाइन से पहले हो, ताकि वो काम हमारा पहले से रेडी हो, तो हम अपनी डेडलाइंस के ऊपर काम इफेक्टिवली ख़त्म कर सकते हैं। प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है, और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, और क्या चीज़ अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों को हम लोग जो है वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और उन बेसिस के ऊपर सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं। वरना जो है वो सारे काम हो ये रहा होगा कि जो है वो अनइम्पोर्टेंट काम पहले हो रहे होंगे, और जो इम्पोर्टेंट काम थे वो हम प्रायोरिटाइज नहीं हुए होंगे, तो वो पेंडिंग होंगे। आइडेंटिफाइंग सुपीरियर एम्प्लॉयज। अब होगा ये कि वहाँ पर जो भी हमारे जो सुपीरियर एम्प्लॉयज हैं, उनको जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन लोग यहाँ पर अच्छे हैं, लाइक किनके पास स्किल ज़्यादा है, किसके पास जो है वो स्पिरिट ज़्यादा है काम करने की। मुख्तलिफ इस तरह की स्किल्स को हम और इन क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे एम्प्लॉयज़ के अंदर, जिनके साथ हमें काम करना आसान होगा। अब अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर 5 लोग हैं, और उन 5 में से जो है वो हमें समझ में आ रहे हैं कि 2 लोग काम के हैं, ये 2 लोग ऐसे हैं कि अगर मैं इनको काम बोलूँ तो ये टाइम पर काम और अच्छे तरीके से काम करके देंगे, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उन लोगों से फिर अपना काम कराऊँ, ताकि मुझे पता हो कि ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उनके डिपार्टमेंट का काम होगा तो यू आर हेल्पलेस अगर वही काम करके नहीं दे रहे। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से जो है वो अच्छे एम्प्लॉइज़ हैं, और फिर उनसे उनके साथ मिलके अपना काम करेंगे। इफ़ेक्टिव एम्प्लॉयी करियर पाथवे प्लानिंग, और उनके साथ जो है वो हमारे जो एम्प्लॉइज़ होंगे, उनकी जो पाथवे होगा, उनका जो करियर प्लान होगा, उसके अंदर हम जो है वो अपनी मदद करेंगे कि उनके साथ क्या-क्या हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उनको परस्यू करवाने में, उनके जो भी ड्रीम्स और गोल्स हैं करियर को लेके, उनके साथ हम प्लानिंग करें उनके करियर की। ऑर्गेनाइजिंग वर्क प्लेस, हमारी जो वर्क प्लेस है उसका ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेज करने के लिए। अगर हमारी वर्क प्लेस ही बहुत हैफ़-हैज़र्ड हुई हुई है, और हम लोग को जो है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, यूजुअली हमारे माशरे का रिवाज यही है कि हमारी जो एक टेबल होती है, ऑफिस टेबल, सारी चीज़ें उसी के ऊपर हो रही होती हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएँ तो लिटरली लोग वहाँ पर सो भी रहे होते हैं अपनी ही टेबल्स के ऊपर, और तकिए ले जाते हैं और जनाब वहीं पर सो रहे होते हैं, और वहीं पर खाना भी चल रहा होता है, वहीं पर मज़ाक भी चल रहा है, और सारे काम वहीं हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से जब असल काम करने का टाइम आता है ना, तो हमें कोई ना कोई चीज़ मिल नहीं रही होती, कोई चीज़ खराब हो चुकी होती है, किसी जो है वो इम्पोर्टेंट पर्चे के ऊपर चाय गिर चुकी होती है, और किसी इम्पोर्टेंट पर्चे के ऊपर जो है वो सालन गिर चुका होता है, और इस तरह के जो है वो हरकतें हो रही होती हैं। तो हमारे वर्क प्लेस का ऑर्गेनाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा टाइम सेव हो, चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज़ रखी हुई हों, फाइल्स के अंदर हो, फ़ोल्डर्स के अंदर हो, हमें पता हो, वो हमारे जो है वो कैबिनेट्स के अंदर, या हमारे पास जो भी हमें लॉकर्स दिए हुए हैं, या हमें वॉल यूनिट्स दिए हुए हैं, तो उसके अंदर चीज़ें हमारे पास ऑर्गेनाइज़ रखी हुई होंगी, तो हमारा काम आसानी से और बहुत कम टाइम में हो जाएगा। आइडेंटिफाई टाइम वेस्टर्स एट वर्क प्लेस, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है वर्क प्लेस पर टाइम वेस्टर्स का। होता ये है कि जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में दोस्त बनते हैं, इसी तरह हमारे वर्क प्लेस के ऊपर भी दोस्त बनते हैं। लेकिन अब होता ये है कि वहाँ की जो दोस्ती होती है उसको निभाना थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप काम कर रहे होते हो,
टास्क बेस। अब आजकल जो है वो जो भी इदारे होते हैं वहाँ पर टास्क बेस काम हो रहा होता है, और अब होता ये है कि जनाब एक दोस्त आएगा, वो जो है वो किसी लंच ब्रेक पे लेके चला जाएगा, और वो किसी नमाज ब्रेक के बाद आपको जो है वो आधा घंटा बैठ के बातें कर रहे हैं, 1 घंटा बैठ के बातें कर रहे हैं। वो किसी के साथ अगर कोई स्मोकर है तो वो जनाब सिगरेट स्मोकिंग के लिए जो है वो आधा आधा घंटा जा रहे हैं बाहर। तो ये जो लोग होता है ना, ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं, ये सारे लोग मिलके। तो आप पहले तो ये चेक करें कि भाई कौन लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू बातें करके। उनको आप उतना ही टाइम दें जितना उनको देना चाहिए, और काम के टाइम पर उनको उनसे माज़रत कर लें कि फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ और मैं काम के बाद आपसे मिल सकता हूँ। इस चीज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंटली हमें देखना होता है, और इस चीज़ को टैकल करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि यकीनन आपकी दोस्तियाँ होती हैं उनसे। 7वां पॉइंट है हमारे पास डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल एम्प्लॉइज़। हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको हम डिसिप्लिन और पंक्चुअल रखें, क्योंकि हमें जो काम करना होता है किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी इदारे के अंदर, हमें जो सारे काम होंगे वो यकीनन सिर्फ होल एंड सोल हम नहीं कर सकते। बहुत सारे काम बहुत दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग और इधर-उधर से करवाने पड़ते हैं। तो अगर आप तो अपना काम इफेक्टिवली टाइम के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग आपका ही काम डिले कर रहे हैं, तो फिर आपका काम ही डिले माना जाएगा आगे चल के। अगर आपके काम में डिले हो गया किसी और की वजह से, तो बेसिकली आपके नाम पर वो डिले होगा। तो हम अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे साथ जो काम करने वाले कोलीग्स हैं हमारे, उनको भी थोड़ा-सा डिसिप्लिन और पंक्चुअल रखें कि भाई ये वाला काम है, मुझे इस तारीख तक लाज़मी तौर पे चाहिए ये। तो उनको भी थोड़ा-सा पंक्चुअल रखने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जो ओवरऑल जो हमारे टास्क हैं, वो टाइम पर कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। रोल ऑफ मैनेजर्स इन इनकलकेटिंग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इन एम्प्लॉइज। अब ये जो टॉपिक है ये भी तकरीबन कॉर्पोरेट टाइप का ही है, लेकिन अब इसके अंदर हम ये बताएंगे कि हम अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर या इदारे के अंदर हम मैनेजर हैं, और हमें हमारे अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो नीचे के लोग हैं, वो जो है वो टाइम मैनेज करें और चीज़ों को जो है वो टाइम पर करके दें। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक बाकायदा स्किल्स है, जिसके ऊपर हम तो एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं छोटी सी, बाकायदा बाहर कोर्सेज हो रहे होते हैं इस चीज़ के। तो हम ये चाहेंगे कि बीइंग अ मैनेजर हमारे जो अंडर लोग काम कर रहे हैं वो टाइम को इफेक्टिवली इस्तेमाल करें, टाइम को मैनेज करके अपनी लाइफ को स्पेंड करें। तो इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। पहला पॉइंट ये कि मैनेजर मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल। हम खुद जो है ना, जो मैनेजर है, उसको चाहिए कि वो जो लीड कर रहा हो ना अपनी टीम को, वो एग्जाम्पल के तौर पे लीड करे। मतलब लोग उसकी एग्जाम्पल दें, वो इतना अच्छा लीड कर रहा हो कि लोग उसकी एग्जाम्पल पर जो है वो काम कर रहे हो कि नहीं यार उसको देखो वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो अपने आप को जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे हम लीड करेंगे अपनी टीम को। आस्क एम्प्लॉइज टू कीप स्टेशन वर्क ऑर्गेनाइज्ड। वही बात आ गई कि हम अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको बोलेंगे कि अपनी जो वर्क प्लेस है, वर्क स्टेशन है, उसको आप ऑर्गेनाइज करके रखें, क्योंकि इस चीज से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, आस्क एम्प्लॉइज टू हैव नोटपैड्स, पेन्स, फोल्डर्स एट वर्क स्टेशंस। अच्छा, अब होता ये है कि हमारे जहन के अंदर अगर कोई मीटिंग चल रही है या कोई ऐसी बात है कि जो इम्पोर्टेंट है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपने सारी बातें सुन ली और सारी बातें आपके ज़हन नशीन हो गई हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान अगर जो बातें सुन रहा है उसमें से 100% बातें उसको याद रह जाएँ। और 1 दिन के बाद तो जो है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर ये भी लिखा हुआ होता है कि 20 टू 30% चीज़ याद रह जाती है, और 70 टू 80% चीज़ें बंदा 1 दिन के बाद भूल चुका होता है। तो होता ये है कि हम लोग उस वक़्त तो हमारे ज़हन में होती है ये चीज़, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक हमें याद होता है, लेकिन 2 से 3 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता वैनिश आउट होना शुरू हो जाती हैं। और फिर होता ये है कि अगले दिन अगर किसी बॉस ने काम बोला हुआ था, तो अगले दिन तक हम वो काम ही भूल चुके होते हैं। तो इसका आसान हल ये है कि हम अपने पास नोटपैड्स, छोटे-छोटे नोटपैड्स और पेन्स एनी टाइम अपने साथ रखें, या ख़ास तौर पे उस वक़्त कि जब हम अपने मैनेजर से मिलने जा रहे हैं, हम अपने जो है वो किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं या कोई ग्रुप डिस्कशन है हमारा, तो हम उस वक़्त नोटपैड्स और पेन्स अपने पास रखें, ताकि हम कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने पास लिख लें। ताकि हम कोई चीज़
मिस ना कर सकें। चौथा पॉइंट है हमारे पास, डेलीगेट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉयज। अब होता ये है कि बीइंग अ मैनेजर हम ये समझते हैं कि मतलब हम सारे काम जो है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, सारे काम हम करेंगे, और जो है वो एम्प्लॉयज को हम बहुत ज़्यादा काम नहीं देते। हम बोलते हैं कि नहीं भाई, ये काम भी मैं कर सकता हूँ, ये काम भी मैं कर सकता हूँ, ये काम भी मैं कर सकता हूँ। अब होता ये है कि काम इतने जमा हो जाते हैं कि इंसान वो उन 10 में से 10 काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो इतना ओवरलोड हो चुका होता है, वो किसी एक काम के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाता, और सारे काम जो है वो भूल जाता है, और या फिर जो है वो कर ही नहीं पाता। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डेलीगेट करें एम्प्लॉयज के अंदर, एम्प्लॉयज को थोड़ी सी भैया मैं क्लास ले रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहा हूँ दें। ऑनलाइन, उसके बाद में बात अ, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करें एम्प्लॉयज़ में, मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इस चीज़ का जवाब दोगे, तुम मुझे इसके आंसरेबल होगे, तुम मुझे आंसर करोगे अगर कोई मसला आता है। तो हम इस चीज़ को जो है वो एम्प्लॉयज़ के अंदर दे सकते हैं। 5वां पॉइंट है, लेट देम मेक टू डू लिस्ट। अब हम एम्प्लॉयज़ से ये बोल सकते हैं कि तुम अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करो। ऑल्दो टू डू लिस्ट का अब जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही वैनिश आउट होता जा रहा है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक। इनफैक्ट मैं कल भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें भी वो बंदा कह रहा था कि जो है वो टू डू लिस्ट जो है वो तकरीबन एक जो है ना वो बेकार सी चीज़ होती जा रही है, आसान अल्फाज में। बहरहाल वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि टू डू लिस्ट ऑल्दो एक अच्छी जो है वो चीज़ होती है, चीज़ों को याद रखने के लिए, अपने कामों को प्रायोरिटी के बेसिस पे अपने पास अगर हम नोट डाउन कर लेंगे, कल मुझे पहले सबसे पहले ये काम करना है, सबसे पहले मुझे जाते ही ये ईमेल करनी है, इस ईमेल का रिप्लाई करना है, फलाना काम करना है, ये चीज़ यहाँ पहुँचानी है, ये चीज़ यहाँ पहुँचानी है, इसकी टेबल पे ये देना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे तो हमारे लिए काम करना आसान और टाइम के ऊपर बहुत आसान हो जाएगा। छठा पॉइंट है हमारे पास, ट्रेनिंग। हम अपने जो है वो लोगों की ट्रेनिंग करते हैं ना मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। अब वो ट्रेनिंग किन बेसिस के ऊपर होनी चाहिए, वो हो सकता है कि हमारी कंप्यूटर स्किल्स की ट्रेनिंग हो, ताकि जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को, आज के दौर में ये बहुत बड़ा मसला होता है कि हम लोग जो है वो बड़े-बड़े हमारे बड़ी-बड़ी डिग्री होल्डर्स होते हैं, और उन लोगों को जो है वो इनफैक्ट कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होता, उनको जो है वो वर्ड और एक्सेल इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होता। तो हम उन चीज़ों की ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि उनका भी टाइम सेव हो, और अगर उनका टाइम सेव होगा, उनका टाइम मैनेज हो रहा होगा अच्छे तरीके से, तो हमारा भी टाइम मैनेज हो रहा होगा, क्योंकि हमें उन्हीं से काम लेना है, क्योंकि बीइंग अ मैनेजर आप अपने एम्प्लॉय से ही काम लेते हो। 7वां पॉइंट है हमारे पास, बी अ गुड लिसनर। अब होता ये है कि हमारे यहाँ मैनेजर्स का जो है वो थोड़ा-सा जो है ना प्राइड बिहेवियर ज़्यादा होता है। तो हम लोग जो है ना किसी की बात सुनते नहीं और ना ही सुनना पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे अपने से छोटे लोगों की। तो हम जो है जब तक अपने छोटे लोगों की बात नहीं सुनेंगे ना, वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो हमारा जो रिलेशन होना चाहिए वो एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत अच्छा और बहुत कंफर्टेबल रिलेशन होना चाहिए, ताकि वो अपनी हर बात शेयर कर सकें हमसे और हमें पता हो। तो हम जब तक उनकी बात अच्छी तरीके से सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो 7वां पॉइंट यही है कि हम जो है वो गुड लिस्टनर हो। नेक्स्ट स्लाइड। आइए इस स्लाइड में जो है वो हम ये देखेंगे, प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस। ये तकरीबन हमारी जो है वो 12वीं स्लाइड जैसा ही है। हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। नो योर टारगेट्स वेल, पहला पॉइंट है। हम अपने टारगेट्स को अच्छी तरीके से पहले तो समझ लें कि हमारा टारगेट है क्या। अभी ऑफिस के अंदर रहते हुए अक्सर ऐसा भी होता है कि आप किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर होते हो, लेकिन आपका बॉस अगर अजीब सा है तो वो आपसे चाय भी मंगवाएगा अपनी टेबल पर। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है कि वो अपने बॉस की टेबल के ऊपर कपड़ा भी मार रहे हैं, जबकि वो एक अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छी डेजिग्नेशन पे हायर हुए हैं, वो इंजीनियर है या वो एमबीए है, उसके बावजूद ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो पहले तो आप अपना टारगेट सेट करें कि आप आए क्यों हैं इस कंपनी के अंदर, इस ऑफिस के अंदर आप आए क्यों हैं, और आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। तो आप इस चीज़ को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत मुश्किलात का सामना हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, डिस्कस वर्क विद सबऑर्डिनेट्स। अपना जो काम है ना वो अपने क्या कहना चाहिए उसको, के मुताल्लिक़ अफ़राद से डिस्कस करते हैं। अपनी चीज़ें जो है ना, अपने अपने काम को उन लोगों से भी डिस्कस करें कि जो उस काम के अंदर इन्वॉल्व है।
अकेले सारे काम करने की कोशिश करेंगे ना तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और काम मोस्ट प्रोबेबली अच्छे तरीके से नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें, अपनी वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज रखें और ताकि हमारे लिए काम करना आसान हो और टाइम वेस्टर हमारे मतलब कोई ऐसी चीज ना हो कि जो हमारा बिला वजह टाइम वेस्ट कर रही हो। चौथा पॉइंट है बी लॉयल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली हमारे यहाँ नहीं होता ये। हमारे यहाँ इनफैक्ट टीचर्स के अंदर हो या किसी एम्प्लॉयज के अंदर हो, ऐसा नहीं होता कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल हो। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल नहीं होंगे ना तो हम कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मनी कर रहे होंगे ना वो काम, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो काम की क्वालिटी वैसे ही होगी कि अगर हमारे दिल के अंदर की अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनी या अपनी यूनिवर्सिटी से एक लॉयलिटी के अंदर जो काम करने के अंदर जो एक अच्छाई होगी ना, वो नहीं हो सकती। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब तक लॉयल नहीं रहेंगे तो हमारे काम की क्वालिटी और हमारे काम का जो टाइम है ना, वो मैनेज नहीं हो पाएगा। पांचवा है प्लान योर थिंग वेल इन एडवांस। अब हमारी जो चीजें हैं उनको हम एडवांस तौर पर जो है वो प्लान करें पहले से। चीजों को जो है वो प्लान लेके चलें ताकि हमारे आगे चल के मतलब जब मेन काम करना हो तो हमारे पास एक प्लान मौजूद हो उस काम को करने का, उस काम को परस्यू करने का। छठा पॉइंट है हमारे पास कीप अ नोटपैड एंड पेन हैंडी। अपने हाथ में कोशिश करें कि अपने हाथ में हर वक्त जो है वो एक पेन और एक नोटपैड रखें। कुछ लोग जो है वो बहुत बड़ी बड़ी डायरीज मेंटेन कर रहे होते हैं, वो A4 साइज पेज की, तो वो हैंडी होती नहीं है, वो हैंडल हो नहीं पाती। वो बंदा जब खरीदता है ना तो वो ऑफिस की टेबल पर ही रहती है और वहीं पर ही पड़ी रह जाती है आखिर तक। तो कोशिश करें कि छोटा और हैंडी टाइप का हो कि अगर आपको कहीं मूव करना है, कहीं आगे पीछे जाना है तो आपने अपनी पॉकेट में डाली और आप ले गए या हाथ में पकड़ के बआसानी कहीं पर भी ले गए, ताकि हम उसके अंदर अपने कामों को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर नोट डाउन कर लें ताकि भूले नहीं हम। सातवां पॉइंट है ईट ओनली ड्यूरिंग लंच आवर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत रिसर्चेज हैं इस पॉइंट के ऊपर कि हम अपना खाना अपने खाने के टाइम पर ही खाएं। इसके अलावा हमारे यहाँ हमारे माशरे में खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये चीज जो है ना बहुत कॉमन है कि आप ऑफिस के अंदर बैठ के खाते ही जाओ। मतलब आप जो है वो हर थोड़ी देर के बाद चाय आ रही होगी जनाब, बिस्किट्स आ रहे होंगे, नींबू आ रहा होगा, और कुछ नहीं तो बंदा अपने घर से ही कुछ सामान ले जाता है। वो कुछ नहीं होगा ना तो वो जेब में चने डाल के ले जाएगा। मतलब हमारे यहाँ खाने का एक अजीब सा वो है कि बस मुंह चलता है इस चीज के ऊपर। इससे टाइम तो वेस्ट होता ही है, इससे काम के अंदर जो इफेक्टिवनेस है वो भी वीक होती है हमारी। हमारे अंदर जो एक फुर्ती है ना वो भी कम होना शुरू हो जाती है। हमारा पेट जितना भरता जाता है उतनी नींद आती जाती है। तो हम इस चीज के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हम अपने खाने के टाइम पर ही खाना खाएंगे तो हमारे लिए टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं होगा बाकी औकात में, और हमारा काम करने की जो हमारी एनर्जी है वो भी मैक्सिमम होगी। आठवां पॉइंट है बी पंक्चुअल। हम अपने काम को अपने चीजों को जो है वो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर करके और उन्हीं को उनके टाइम पर करके खत्म कर दें। कोई चीज पेंडिंग ना रखें और या फिर बहुत ज्यादा लंबा ना खींचे किसी भी एक टास्क को। नवा पॉइंट है डोंट कीप थिंग्स पेंडिंग एट योर एंड। होता ये है कि किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी इदारे के अंदर हम कोई भी काम हमें मिलता है तो वो यूजुअली ऐसा होता है कि वो 2-3 डिपार्टमेंट से लिंक कर रहा होता है। तो अब होता ये है कि जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आपकी वजह से नहीं दूसरे की वजह से भी ऐसा भी हो सकता है कि वो डिले हो रहा हो। तो हम कोशिश ये करें कि अगर किसी और की तरफ से डिले हो भी रहा है तो अपना काम टाइम पर करके दे दें। ऐसा नहीं हो कि हम बोलें कि यार फलाना भी देर कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, जब उसने भी 2 दिन लगाया है तो मैं भी 4 दिन लगा दूंगा, कोई मसला नहीं है। हम ऐसे करेंगे तो काम मजीद डिले होगा और आपके लिए बुराई है वो। तो हम अपने काम को अपने एंड पर जो है वो पेंडिंग ना रखें। अपने काम को अपने एंड पर जो है वो हम जो है वो बिल्कुल टाइम पर करके और हर काम को खत्म कर दें। बाकी भले आप जो है वो अगर किसी और डिपार्टमेंट को देते हैं वो काम, तो वो अगर डिले कर रहे हैं तो वो आपका हेडेक नहीं है। आप आगे आंसरेबल है कि भाई मैंने अपना काम टाइम पे कर दिया था, ये फलाने बंदे का काम था, वो टाइम पर नहीं कर रहा। दैट्स इट। आगे नोमान कंटिन्यू करेंगे। जी नोमान, इसी स्लाइड पे आगे चलें।
यस सर, आगे जी। टिप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सर हमारी जिंदगी में सर बहुत से टास्क होते हैं, फैमिली टास्क, वर्क टास्क। सर हम हर एक ही वक्त में सर सब टास्क तो सर कंप्लीट नहीं कर सकते सर। इसके लिए सर हमें कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है, जिससे हमें सर हर अपने प्रायोरिटी बेस पे सर टास्क को कंप्लीट कर सकें। सर फैमिली टास्क के अलावा सर हमारे पास वर्क टास्क भी होते हैं, जॉब टास्क सर, जिसमें सर ऑफिस में सर सबसे पहले सर जो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट में जो टिप है, रीच ऑफिस ऑन टाइम। सर हम अगर ऑफिस सर टाइम पर नहीं पहुंचेंगे सर, तो हम अपने ऑफिस वाले जो टास्क हैं सर उन्हें भी सर कंप्लीट नहीं कर सकते सर। सर जिसके लिए सर हमें एक प्लान जो है की ज़रूरत होती है सर, ताकि हम सर अपना टास्क जो है को देखते हुए सर अपना जो है मैं प्लान बना लें सर, जिसमें सर डिफाइंड हो सर के ये टास्क सर किस टाइम तक अचीव किया जा सकता है, करना है, तो उस हिसाब से हम अपना सर टाइम इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं उस टास्क के लिए। उसके बाद सर हम मैनेज योर सेल्फ वेल। सर टाइम मैनेजमेंट की टिप्स के अंदर सर एक ये टिप भी है कि हम खुद की आदत को जो है मैनेज करें, जो है जिसकी वजह से हम टाइम को हम अपने टास्क को डिले करते जाते हैं सर, जिन आदत की वजह से सर। जी। उनमें सर एक ये भी टिप है सर टाइम मैनेजमेंट की। उसके बाद सर चौथी टिप ये है, डू नॉट क्लटर योर डेस्कटॉप। सर ऑफिस में सर हमारे पास सर डेस्कटॉप मतलब से मुराद ये है सर कि सर ऑफिस में बहुत सी चीज़ें सर अरेंज नहीं होती सर, अपनी जगह पे सर नहीं रखी होती, जिसकी वजह से सर माइंड डिस्टर्ब होता है सर के टाइम जो है अपने टास्क वगैरह से सर जो है ध्यान हट जाता है सर। तो हमें जो है अपने जो है डेस्कटॉप को क्लटर नहीं होने देना चाहिए। डेस्कटॉप पे जो भी चीज़ें सर पड़ी हुई हैं उनके हिसाब से सर। उसके बाद सर आता है सर 5वीं नंबर जो टिप है, यूज़ है प्लानर और ऑर्गेनाइजर। सर हमें जो है अपने टास्क को सर जो है प्लान रखना चाहिए, ताकि हम सर जो है बेहतर अंदाज में सर सबको अपने टास्क को सर कंप्लीट कर सकें। उसके बाद आते हैं सर टिप्स टाइम मैनेजमेंट के अंदर, सेट प्रायोरिटीज फॉर योर सेल्फ। सर हमारे पास सर टास्क बहुत होते हैं सर, तो सर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सर ये एक टिप ये भी है कि हम अपने टास्क को सर प्रायोरिटी बेस सर सेट कर लें, कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सर पहले सर उसको जो है अचीव किया जाए। तो सर इस हिसाब से भी सर टाइम मैनेज किया जा सकता है सर। 7वें नंबर अच्छा जो सर भाई 1 मिनट रह गया, मैं पॉइंट है यहाँ सर, पे आपको रोक रहा हूँ। ये जूम का टाइम खत्म हो रहा है, मैं वीडियो सेव करके वापस आता हूँ, वरना ये लॉग आउट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जी सर। आप यहाँ रुकिए।